یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو اسلام. آواز بہت کم ہے. سب کو اسلام. آئے دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے پاک روح کو ویلکم کریں. خوبصورت زبور میں خوشی ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے. تو جب آپ خداوند کے گھر میں آتے ہیں تو خوشی کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ آیا کریں تاکہ یسوع کے نام کو جلال دیں. تو خوبصورت موسم کے لیے اس وقت کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا ہماری سنتا ہے. کتنا کی خداوند سنتا ہے. دلیری کے ساتھ جدی کسی تو گل سنی جاتی ہے نا وہ دے پھر پیر تھلے نہیں لگتے. تو ہماری کون سنتا ہے؟ اس کل کائنات کا بنانے والا میرا اور آپ کا خدا. ہاللیلویہ. تو آئے ہم آگے بڑھیں گے, کلام کی طرف چلیں گے. آج کا میرا ٹاپک ہے کال آؤٹ دا نیم آف جیزس. یسوع کے نام کو پکارے, یسوع کو پکارے. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب آپ یسوع کو پکارتے ہیں تو اس کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ تو مجھے پکارے گا اور میں تیری سن لوں گا. جب بھی آپ اس سے پکارتے ہیں میرے عزیزو, the moment you call out the name of Jesus, جس لمحہ آپ یسوع کے نام کو پکارتے ہیں, چاہے آپ کے ارد گرد کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو, کیسا بھی سینیریو کیوں نہ ہو, کتنا بھی بڑا گڑھا کیوں نہ ہو, یا کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو, اسی گھڑی جس لمحہ آپ یسوع کو پکارتے ہیں وہ آپ کی سنتا ہے. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ اور خدا کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے. لیکن آج میں آپ کو پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی مشکل کے اندر, اپنی مصیبت کے اندر کس سے پکارتے ہیں؟ آپ کی نظریں کہاں پر لگی ہوئی ہیں؟ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, جب آپ یسوع کے نزدیک آتے ہیں, یسوع کو پکارنا چاہتے ہیں, تو ابلیس کیا ہے؟ وہ آپ کو چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ یسوع کو پکاریں. وہ چاہتا ہے کہ آپ بیماری کے اندر, مشکل کے اندر, دکھ کے اندر, مصیبت کے اندر ہی پڑے رہیں, کڑتے رہیں, بجائے کہ یسوع کو پکارے اور کہے یسوع تیرا شکر ہے, آپ ہائے ہائے کرتے رہیں. ابلیس چاہتا ہے کہ وہ آپ کی خوشی کو چرا لے. ابلیس چاہتا ہے کہ وہ آپ کے اطمینان کو چرا لے, آپ کی تسلی کو چرا لے. کلام کے اندر لکھا ہے چوراتا ہے تاکہ ہلاک کرے, تباہ کرے, لیکن میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. میرا اور آپ کا یسوع مسیح, خدا باپ نے مجھ سے اور آپ سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے بڑے مسئلے کا حل ایک ہی دفعہ میں کر دیا. اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے بھیج کر, اور اس کے بیٹے نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی. وہ صلیب پر چڑھ گیا, اس نے میرے اور آپ کے لیے خون بہایا. آج ہم پاک شاہ کی عبادت میں شریک ہو رہے تھے, شکر گزاری کر رہے تھے کہ یسوع تو نے میرے لیے خون بہایا. اس کے خون کے اندر آپ کی شفا ہے, آپ کی مخلصی ہے, آپ کی رہائی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر چڑھ گیا, دفن ہوا, لیکن قبر اس کو اپنے قبضہ میں نہ رکھ سکی, اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے, اور آج کہاں ہے؟ باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے, اور مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے. ہاللیلویہ. آئے ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے لوکا کی انجیل, اس کا 18واں باب. آپ نے بہت دفعہ خداوند کے کلام میں سے یہ معجزہ, یہ سٹوری سنی ہوگی. اس کی 35ویں آیت سے 43 ورس تک ہم پڑھیں گے. لکھا ہے, جب وہ چلتے چلتے یرو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا, ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا. وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے اس سے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے. اس نے چلا کر کہا,
اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر. جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے یہ پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا اے خداوند یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. یسوع نے اس سے کہا بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگوں نے دیکھ کر خداوند کی حمد کی. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آئے زوردار تالیوں میں ہم خداوند کی حمد کریں گے کہ میرا اور آپ کا خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. تو میرے چیزوں اس پیسج کے اندر ہمیں ایک ایسا شخص ملتا ہے کہ جو اندھا ہے، فزیکلی طور پر وہ بلائنڈ ہے، اور وہ یرو کے دروازہ کے نزدیک وہ کیا ہے کہ بیٹھا ہے اور بیٹھ کر بھیگ مانگ رہا ہے. میرے عزیزوں، اور اس کی لائف جو ہے بھیگ مانگنے والے کی زندگی ایک میزریبل لائف ہے. ایک ایسی سچویشن ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے جہاں پر نا امیدی ہے، جہاں پہ ہر صبح اس کو اٹھ کر یہ نہیں پتا کہ کیا آج مجھے کھانے کو ملے گا کہ نہیں، کیا آج مجھے ایک وقت کا کھانا ملے گا یا 2 وقت کا کھانا ملے گا. He do not know. It is a totally hopeless situation. ایک نا امیدی کی حالت میں وہ کئی عرصہ سے وہاں پر ہی بیٹھا ہے، اور it is a normal routine. یہ اس کا روزمرہ کا روٹین تھا کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر بھیگ مانگتا تھا. لیکن میرے عزیزو وہ دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن جب اس نے اپنے سراؤنڈنگ میں بہت سی آوازیں سنی تو اس نے ادھر ادھر سے پوچھنا شروع کیا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کون یہاں سے گزر رہا ہے. میرے عزیزو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو اس یسوع کے بارے میں بتایا تھا، یا اس نے سنا تھا ان معجزات کے بارے میں جو معجزات وہ کر رہا تھا. وہ جہاں کہیں جاتا اندھوں کی آنکھیں کھولتا، لنگڑوں کو چلاتا، اور کیا مردوں کو بھی زندہ کر رہا تھا. یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے جہاں کہیں پر جاتے ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے جمع ہو جاتی، اور he was doing mighty miracles. ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کو بتایا ہو کہ یسوع بڑے بڑے کام کر رہا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں آئیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے اس سے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے، وہ بھیگ مانگنے والا. میرے عزیزوں وہ اتنے رش کو سن کے تو بڑا خوش ہوگا. آج یہاں پر بڑا ہجوم لگا ہوا ہے، بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں. آج تو شاید مجھے زیادہ پیسے مل جائیں گے، آج اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ مجھے ہفتے کا ہی جو ہے ساز و سامان آج ہی مل جائے گا. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ابلیس ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ ہم کلام میں کیا لکھا ہے، پرندے نہ وہ جمع کرتے ہیں لیکن خداوند کیا کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے. آپ اس سے بھی بڑھ کر ہیں. آئیے اس اندھے فقیر سے ہم سیکھیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ یسوع جا رہا ہے تو میں اس سے کوئی کہوں کہ یسوع تو مجھے زیادہ دینار دے دے، بلکہ جیسے ہی اس نے سنا کہ یسوع ناصری یہاں پر موجود ہے، وہ جان گیا کہ یہی یسوع ناصری ہے جو میری مشکل کا پرماننٹ سلوشن ہے. ہو سکتا ہے کہ آج آپ ٹیمپرری سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں، آپ ایسے حل ڈھونڈ رہے ہیں جو
जो सिर्फ 1 हफ्ता काफी है, 2 दिन का मसले का हल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके सब मसलों का हल मुकम्मल तौर पर एक ही है, और उसका नाम यीशु मसीह है। तो मेरे अजीजों, छोटी छोटी बातों की फिक्रें छोड़ दीजिए, और जब यीशु की बात आती है तो जान जाइए कि वो अश्योरिटी है। द मोमेंट यू क्राई आउट द नेम ऑफ जीसस, जिस लम्हा आप यीशु को पुकारेंगे तो वो आपको जवाब देगा और मिल जाएगा। और जब यीशु मिल जाएगा तो फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत से लोग बीमार होते हैं और शिफा पाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, इससे भी कितनी अच्छी बात, आप एक बीमारी से शिफा पाकर, पॉसिबल है, मैं नहीं चाहती, पर इट इज पॉसिबल कि आपको कोई दूसरी बीमारी भी लग सकती है। लेकिन मेरे अजीजों, आप शिफा के पीछे भागने की बजाय इस शाफी को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। जब शाफी जिंदगी में आ जाएगा तो फिर हर रोज शिफा मिलेगी, हर रोज रिहाई मिलेगी, हर रोज बरकतें ही बरकतें मिलेंगी। हालेलुया। आइए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। फिर जब जैसे ही उसने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, उसने किसी की फिक्र नहीं की। आपको चर्च में कह दें हाथों को बुलंद कीजिए, घुटनों के बल हो जाए, आप इधर उधर देखते हैं, कोई मैंने वेखन ते नहीं दिया, कोई देख लेगा तो कहेगा पता नहीं मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। नो मेरे अजीजों, डोंट केयर अबाउट द पीपल, लोगों की फिक्र मत कीजिए। इस अंधे फकीर को देखिए, ही वॉज डेस्परेट, उसके अंदर एक तड़प थी। जैसे ही उसको पता चला कि यीशु नासरी यहां से गुजर रहा है तो लिखा है, उसने चला कर कहा, यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉल आउट द नेम ऑफ, यीशु के नाम को पुकारिए। इसी वर्ष के बाद आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप यीशु के नाम को पुकारते हैं तो क्या होता है। आगे फिर देखिए क्या हुआ। जो आगे आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे। याद कीजिए कि आप जब भी यीशु के नजदीक आने की कोशिश करते हैं, घर के अंदर मुश्किलात आ जाती हैं, बच्चों के पेपर आ जाते हैं, घर के अंदर को मुश्किल आ जाती है। अक्सर औकात इब्लीस खानदान में से होकर काम करना शुरू कर देता है, घर का कोई फैमिली मेंबर कहना शुरू कर देता है, कार ने काम पेने और आपको चर्च जाने की पड़ी है। सेम सिचुएशन मैं आपको बताना चाहती हूं, इट इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है कि आप यीशु के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इब्लीस को बड़ी तकलीफ है। जैसे ही आप यीशु के नाम को पुकारना शुरू करते हैं, जैसे इस अंधे को जो इर्द गिर्द लोग थे वो कहने लगे चुप रह, डांटने लगे, कहने लगे शट अप, बी क्वाइट। इब्लीस भी ऐसा ही करने की कोशिश करता है। जब आप यीशु के नजदीक आने की कोशिश करते हैं, यीशु के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तरह तरह से बीमारियों से, मुश्किलात से, परेशानियों से, या घर के किसी मेंबर के जरिया से, वो चाहता है कि आप यीशु को ना पुकारें। लेकिन इस अंधे फकीर से एक और बात हम सीखते हैं। क्या हुआ कि जब इर्द गिर्द वाले उसको डांटने लगे तो उसने ये कहा कि ठीक है चुप कर जाना, ये ना हो कि कल मुझे इधर बैठने ही ना दें। हम ये भी बड़ा सोचते हैं, अपनी फिक्र बड़ी है, प्लानिंग ऐसी करके रखी 2 महीने आधी, भावें 2 हफ्ते भी ना चले। आपके प्लान नाकस है। अपने मंसूबों को खुदावंद के हाथों में दे दीजिए, कहिए खुदावंद मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तेरे मंसूबे मेरी जिंदगी में पूरे हों। इस अंधे फकीर ने ये नहीं फिक्र की कि कल पता नहीं मैनू इत्थे बैन ही ना देन, मेरा मंगन वाला बिजनेस ही खत्म हो जाए। नो,
जब यीशु की बात आई तो वो जान गया कि अब तो मेरा ये मसला पक्का पक्का हल होने को है, अब मुझे यहाँ पर दोबारा आकर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो हाथ दुआ में खुदा के आगे बढ़ते हैं ना, फिर वो मदद के लिए किसी इंसान के आगे नहीं बढ़ते। कितनों का ईमान है इस बात पर? हालेलुया। तो कहिए खुदावंद, आइए हाथों को बुलंद कीजिए। खुदावंद हमारे हाथों को बरकत दे, खुदावंद हमारे हाथों को तू ऐसा बना दे ताकि मट्टी को हाथ लगे, मट्टी सोने की कीमत अदा करे, जिस काम को हाथ लगाए बरकत पर बरकत पाए। इफ यू रिसीव से आमेन, हालेलुया। फिर मेरे अजीजों हम देखते हैं आपने क्या करना है। बात जो आपके सीखने की है, इस अंधे से अक्सर का हम कहते हैं एक मंगनाले को लो कुछ सीखेंगे। मेरे अजीजों, वी कैन लर्न फ्रॉम एनीवन। अगर आपके अंदर लर्निंग स्पिरिट है, सीखना चाहते हैं, तो आप किसी की जिंदगी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब वो लोग इसको चुप कराने लगे, उसने क्या किया? कलाम में लिखा है वो और बुलंद आवाज से पुकारने लगा, वो और बुलंद आवाज से कहने लगा, आई यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। हालेलुया। आपको कहना चाहती हूँ, अगर इब्लीस आपको चुप कराने की कोशिश करे, अगर इब्लीस आपको यीशु के नजदीक जाने से रोकने की कोशिश करे, तो आपने क्या करना है कि इब्लीस से डरना नहीं है, बल्कि उसकी तरफ ध्यान नहीं लगाना और यीशु को और पुकारना है। यानी दुआ में और ज्यादा झुकना है, खुदावंद में और ज्यादा मजबूत होना है। अक्सर का हमारी जिंदगी के अंदर ट्रायल्स आती हैं, टेम्पटेशन आती हैं, ऐसी मुश्किल आती है ताकि हम खुदा के और नजदीक जा सकें। तो मेरे अजीजों, आज जितने भी आप यहाँ पर मौजूद हैं, जितने लाइव देख रहे हैं, कॉल आउट द नेम ऑफ जीसस। मैं नहीं जानती आज किस बीमारी में आप मुब्तला हैं, किस मुश्किल में हैं। बच्चे परेशान करते हैं, नशा करते हैं, हालात की वजह से तंग है, पता नहीं कि जिंदगी कैसे चलेगी। तो एक ही हल है, आइए यीशु के नाम को पुकारिए, आइए कहना शुरू कीजिए, आई यीशु, आई इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और फिर यीशु क्या करेगा? आइए नेक्स्ट वर्स में देखते हैं। और इस बात से आपका हौसला बढ़ेगा कि जब आप यीशु को पुकारते हैं, कि ना विरश क्यों ना लगाए, कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, आपकी एक पुकार उसके कान में जाती है। आगे हम देखते हैं क्या हुआ। जब उसने यीशु को और बुलंद आवाज से पुकारा ना, पहली दूसरी 36वीं आयत में देखें कि भीड़ के जाने की आवाज। वो देख नहीं सकता था, लेकिन इतना रश था कि वहां पर बड़ी आवाज थी, भीड़ की आवाज थी। यानी there were so many people over there, वहां पर बहुत सारे लोग थे। लेकिन जब इस अंधे फकीर ने, जो मांगने वाला, भीख मांगने वाला था, यीशु को पुकारा, तो यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया, उसको मेरे पास लाओ। The moment you cry out the name of Jesus, जिस लम्हा आप यीशु को पुकारेंगे, यीशु कहेगा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास आ। और फिर खूबसूरत बात, यीशु ने क्या कहा? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए, What do you want that I do for you? कितनी खूबसूरत बात यीशु के मुंह से सिर्फ एक ही वजह से निकली, जब आप उसे पुकारेंगे रहम के लिए, मदद के लिए, जब आप उसके नाम को पुकारेंगे। देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। आज मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन अगर हम यीशु के नाम पर ही सिर्फ बात करें तो शायद दिन लग जाएं यीशु के नाम की सिफात को बयान करने में, यीशु के नाम की पावर को बयान करने में। तो मेरे अजीजों, यीशु नाम को अपनी जिंदगी में ले लीजिए और यीशु नाम को पुकारें। और फिर क्या हुआ? जब यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? फकीर था, रोज मांगता था,
लेकिन वो जान गया था कि यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसने आगे से ये नहीं कहा कि मैं रोज मांगता हूँ, यीशु तू ऐसे कर दे, मेरे महीने का कोई ऐसा सिस्टम कर दे, नजर नहीं आंदा, मैं इंज कर ला, उंज कर ला, इंज कर ला। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस तरह की बातों को बड़ा सोचते हैं, लेकिन उसने क्या कहा? उसने राइट अवे अपने मसले को यीशु को बयान किया। जब आप यीशु को पुकारेंगे, वो आपसे पूछेगा, मेरी बेटी तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? मेरे बेटे तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और वो एग्जैक्ट सेम जैसे जैसे आप कहेंगे वैसे वैसे आपके लिए करेगा, क्योंकि ये उसके कलाम का वादा है। खुदा का कलाम सच्चा है और खुदा का कलाम ला तब्दील है, कभी भी तब्दील नहीं होता, लेकिन जिंदगियों को, कौमों को तब्दील करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, फिर हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा। वन वर्ड फ्रॉम जीसस, यीशु के मुंह का एक ही अल्फाज आपकी जिंदगी को तब्दील करने के लिए काफी है। वन वर्ड, वन टच। इसी तरह वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, एक ही दफा यीशु की पोशाक को छुआ। वन टच from Jesus, one word from Jesus is enough, काफी है कि वो आपकी मुश्किलात से आपको रिहाई दे, आपकी जिंदगी को तब्दील करे, आपकी जिंदगी के अंदर बरकत को, तरक्की को, बहाली को लेकर आए। और फिर यीशु ने कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। इस अंधे फकीर की जिंदगी, बहुत सी चीजें हम सीख सकते हैं। एंड में भी वो हमें एक सबक दे रहा है। इधर क्या होता है, एक चर्च हम ज्वाइन करते हैं, मसला है जी है, नौकरी सानू चाहिए, ये मौजा हमें चाहिए, कमिटमेंट करते हैं, 4 संडे टका के आते हैं, 5वें संडे हमारा काम हो जाता है। उसके बाद हम आहिस्ता 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 बिजी हो जाते हैं। फिर हम इतने बिजी हो जाते हैं, दोबारा उदों वापस आने हैं जब फिर कोई बीमारी, फिर कोई मसला, या इब्लीस हमें दोबारा मुश्किल में डालकर लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर क्या बात हमें सीखने को मिलती है? वो भीख मांगने वाला था, आंखें आ गई। उसने ये नहीं कहा कि अब मैं जो हूँ पूरी अपनी फर्म ही खोल लेता हूँ। 4-5 बिजनेसमैन लोग बहुत है ना जी हमारे यहाँ। उसने ये नहीं कहा कि अच्छा मैं 4-5 लोग जो है ना अपने नीचे रख लेता हूँ, मैं खलोता रहांगा साइड पे, अब ये बैठ के मांगेंगे और मैं जो हूँ इन पे बॉस लग जाऊंगा। नहीं मेरे अजीजों, उसने क्या किया? उस सारी पुरानी जिंदगी को तर्क किया। उसने अपनी ओल्ड लाइफ को वहीं पर स्टॉप कर दिया। वो जान गया कि जब यीशु मिलता है, जब यीशु जिंदगी में आता है, तो न्यू बिगिनिंग होती है, नया इब्तिदा होता है, नई पैदाइश होती है। फिर पुरानी चीजें सारी जाती रहती हैं और सब चीजें नहीं हो जाती हैं। क्योंकि ये फकीर, ये अंधा जानता था कि जब यीशु मुझे शिफा देगा, जब मैं उसका बेटा बन जाऊंगा, तो वो मेरी माजी की शर्म को भी खत्म कर देगा। फिर मैं बेकारी नहीं कहलाऊंगा, फिर मैं यीशु का बेटा कहलाऊंगा। हालेलुया। और फिर वो यीशु के पीछे हो गया, यानी उसने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी और वो यीशु के साथ साथ चलने लगा। आज चेक कीजिए कि आप कहां पर खड़े हैं। आप अपनी जिंदगी के अंदर कब और कैसे यीशु को पुकारते हैं और कैसे ही आप बैक स्लिप कर जाते हैं, आप भूल जाते हैं। खुदा के साथ कमिटमेंट करने के बाद आप भूल जाते हैं। जब मुश्किल आती है
तब आप यीशु के नाम को पुकारते हैं। लेकिन जब जिंदगी के अंदर खुशी होती है तो आप नाच रंग करते हैं, तरह तरह की और बातें करते हैं, कमिटमेंट्स करके भूल जाते हैं। खुदा के खादम पास्टर मुनव्वर फजल खुदावंद में सो गए हैं, खुदा के पास हैं। जब वो कलाम सुनाते थे ना तो अक्सर औकात कोई ना कोई जोक वाली बात उनके कलाम से रिलेटेड होती थी और वो ड्यूरिंग सरमन जो है ना वो शेयर करते थे। तो एक दफा का जिक्र है, खुदा के खादम कलाम सुना रहे और कहने लगे कि एक शख्स जो था समुंदर के किनारे चल रहा था और जैसे ही लहर आई तो बहुत जोर से लहर आई तो वो उस शख्स को पानी में ले गई। जैसे ही पानी में ले गई फटाफट उसने दुआ शुरू कर दी, कहने लगा खुदावन तू मुझे बचा ले, मुझे अभी बचा ले, मैं तेरा शुक्र करता हूँ जब मैं इस पानी से बाहर निकलूंगा जिंदगी पाऊंगा, मैं शुक्रगुजारी की देग भी दूंगा, मैं तेरे लिए ऐसे करूँगा। अक्सर औकात हम कमिटमेंट्स करते हैं, जब हम मुश्किल में होते हैं कहते हैं खुदावंद ऐसा कर दे, हम ऐसा कर देंगे। जब उसने कमिटमेंट की, खुदा को पुकारा, खुदावंद हमेशा सुनता है। फिर एक लहर आई और उसने उसको बाहर निकाल दिया। जैसे वो साहिल के नजदीक आया जिंदगी मिल गई तो बड़ा एरोगेंट सा हो के, प्राउड सा हो के, कपड़े झाड़ के कहने लगा केड़ी देग, मतलब वो अपनी कमिटमेंट को भूल गया। फिर उससे भी ज्यादा बड़ी लहर आई और उसको उससे भी पीछे ले गई। हमारे पास फिर भी बड़े एक्सक्यूजेस हैं। जब वो और पीछे को गहरे में चला गया, डूबने लगा तो कहने लगा यसु मैं ते पूछ रहा सा मिट्टी के लूणी। ये हमारा हाल है, हम कमिटमेंट्स करते हैं और कमिटमेंट करने के बाद हम बैक स्लिप कर जाते हैं। खुदावंद के साथ अहद जब आप करते हैं किसी भी तरह का तो उस कमिटमेंट को पूरा करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कलाम के अंदर लिखा है खुदावंद को आप हदिये, नजराने, कुर्बानियां या कोई और चीज देकर खुश नहीं कर सकते। कलाम में अंदर लिखा है सबसे बड़ी शुक्रगुजारी क्या है? आपके होंठों की, आपके होंठों की शुक्रगुजारी, आपके होंठों का नजराना कि आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। मेरे अजीजों, इब्लीस जो आपकी जिंदगी में हाय हाय या बीमारी या मुश्किल या दुख या तकलीफ की बातों को जो लेकर आता है उसके डिस्पाइट आपके मुंह से निकलना चाहिए यीशु तेरा शुक्र है। मुश्किल में भी चले जाए तो कहे खुदावंद आग की भट्टी में भी मैं अगर डाला गया हूं तो तू मेरे साथ है, शेरों की गार में भी डाला गया हूं तो तू मेरे साथ है। और जब खुदावंद आपके साथ है तो लिखा है तू सैलाब पर से गुजरेगा तो सैलाब तुझे, तू आग पर से गुजरेगा तो शोला तुझे जर ना पहुंचाएगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा आपके साथ है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु को पुकारना इट्स नॉट ओनली व्हेन यू नीड, यह सिर्फ तभी नहीं कि जब आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, बल्कि हर वक्त यीशु को पुकारिए। खुशी में, गम में, सेहत में, तंदुरुस्ती में, पस्ती में, बुलंदी में, हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए और खुदावंद के रहम को, उसके तर्स को, उसके फजल को अपनी ज़िंदगी में लीजिए। जब उसका फजल आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो आप बरकत पाएंगे। अगर आप ज़बूर में पढ़ें तो लिखा है मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। किस वक्त? ऑल द टाइम, हमेशा खुदावंद को मुबारक कहे। और फिर आगे लिखा है उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। जब आप खुदावंद को पुकारते हैं, जब उसके साथ जुड़े रहते हैं तो वो आपकी सुनता है, आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है। और ये जो खुदा के साथ आपकी वॉक है इट्स नीड टू बी रेगुलर। ये नहीं कि कभी बहुत उतार चढ़ाव, खुदावंद के साथ जुड़े रहें, बेवस्त रहें, हर रोज खुदा के कलाम को पढ़ें। ये नहीं कि संडे को बाइबल उठाई, देखा भी नहीं कि पता नहीं साफ भी है कि नहीं, क्योंकि आप पूरा वीक खोलनी ही नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे अजीजों, खुदा का ये कलाम
जब आप खोलेंगे खुदा का नूर आपकी जिंदगी में आएगा, खुदा की सलामती आपके घराने के अंदर आएगी। आपके बच्चे जब खुदा के कलाम को सीखेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो डगमगाएंगे नहीं, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक बढ़ते चले जाएंगे। और चाहे तूफान आ जाएं, चाहे मुश्किलात हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, खुदावंद आपकी मदद करेगा। और मेरे अजीजों, हबक्कूक ने खुदावंद को पुकारा, खुदा का नाम लिया, खुदा ने उसकी दुआ को सुना। इसी तरह हम देखते हैं सुलेमान ने खुदा से पुकारा, उससे हिकमत मांगी, खुदावंद ने उसको दिया। याकूब को मदद की जरूरत थी, खुदावंद से मदद मांगी, खुदावंद ने उसको मदद मुहैया की। और मूसा ने खुदा से शिफायत की अपने लोगों के लिए, पर्पस के लिए, जिस भी मकसद के लिए आप खुदा को पुकारेंगे, खुदावंद आपकी सुन लेगा। कितनों का ईमान है कि खुदावंद आपकी सुनता है? हालेलुया। खुदावंद आपकी सुनता है तो फिर हालात कैसे भी क्यों ना आ जाएं, जब खुदा के खादम घर आए तो आपके मुंह से नेगेटिव बातें नहीं निकलनी चाहिए, खुदा का कलाम आपके मुंह से निकलना चाहिए। आखिरी बात आपको बताऊंगी, जब आप खुदा के कलाम की आयत बोलते हैं ना, जैसे आयत बोलते हैं तो खुदावंद अपने फरिश्तों को असाइन कर देता है। असाइन यानी काम पर लगा देता है कि तूने जैसे वो आयत बोली है वैसे ही काम करना है। तो अगर मुश्किल आती है तो बजाय के नेगेटिव बातों को बोले, हाय मैं ते मारी जावांगे, हुन साडा की बनेगा, या तरह तरह की नेगेटिव बातें, आप खुदा के कलाम की आयत को बोलना शुरू करें। कहें खुदावंद तू मेरे साथ है, खुदावंद मैं जानती हूँ मैं कमज़ोर हूँ लेकिन तू ज़ोर आवर है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। कमज़ोर कहे कि मैं ज़ोर आवर हूँ, क्योंकि जब कमज़ोरी की हालत में आप ज़ोर को मांगेंगे, बोलेंगे कि मैं ज़ोर आवर हूँ, तो खुदावंद आपको जोर बख्शेगा। हालेलुया। आए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। इन थाखारा शांतेरे बेबे बेबे। आज मैं आपकी सिचुएशन को नहीं जानती कि आप अपनी जिंदगी के अंदर कहां पर खड़े हैं। बीमारी है, मुश्किल है, तंगदस्ती है, परेशानी है। आइए, cry out the name of Jesus। यीशु के नाम को पुकारिए। जैसे ही आप यीशु के नाम को पुकारेंगे, यीशु नाम सब नामों से आला है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में अंधे देखते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। यीशु नाम से बदरूहें भागती हैं। यीशु नाम में बंद दरवाजे खुलते हैं। यीशु नाम से बड़े बड़े पहाड़ मैदान हो जाते हैं। आइए, जिस भी जिंदगी के हिस्सों में बीमारी है, मुश्किल है, परेशानी है, तंगी है, यीशु नाम को पुकारिए। कहिए यीशु आई मनेदाद मुझ पर रहम कर। कहिए यीशु आई मनेदाद मुझ पर रहम कर। आई यीशु आई मनेदाद मुझ पर रहम कर। मेरे अजीजों, वो आपके दरमियान में मौजूद, वो आपसे पूछ रहा है, मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दीजिए। अपनी मुश्किलात को उसके सामने रख दीजिए। वो हल मुश्किलात, शिफा का मंबा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। जितने कलीसिया में इस वक्त मौजूद हैं, अगर आपकी आंखों के अंदर कोई प्रॉब्लम है, खुदा का पाकरू मुझे दिखा रहा है, जिस तरह उसने उस अंधे फकीर की आंखों को खोला। आइए, अपनी आंखों पर हाथ रख लीजिए। और रबा शांति रे बे 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 बे। खुदावंद यीशु के नाम से इन्होंने इस बीमारी में तुझे पुकारा है, और तेरे कलाम में लिखा है, तो मुझे पुकारेगा और मैं तेरी सुन लूंगा। खुदावंद
ये आंखों की सारी बीमारी को मैं यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, अभी इसी घड़ी जाती रहे। बंद आंखें यीशु के नाम से खुल जाएं। हर तरह की नजर की कमजोरी, हर तरह का धुंध, जाला, मोतिया, remove in the name of Jesus. You are healed by the blood of Jesus. यीशु के खून से आप धुल चुके हैं। Receive your healing in the mighty name of Jesus. खुदा का पाक रूह मुझे दिखा रहा है, जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आपकी आंखों के अंदर भी मसला है। खुदावंद आपकी आंखों की बीमारी को दूर कर रहा है। अगर इब्लीस ने आपकी आंखों पर पर्दा डाला है, वो नका पर्दा खुदावंद आपकी रूहानी आंखों को खोल रहा है। From this day onward, आज से आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। Receive your inheritance, receive your blessing in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen.